Hello students, Jai Hind, Vande Matram. Once again welcome back to your class Ravi Sarji Maths, the easier and better way to learn the concepts of mathematics. Students, today we are going to learn about union of events, intersection of events, mutually exclusive events, exhaustive events and elementary events. Students, if you are new to this channel, just subscribe and don't forget to hit the bell icon. Okay students, और फर्स्ट टॉपिक इज़ यूनियन ऑफ इवेंट्स. स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक जो है वो यूनियन ऑफ इवेंट्स है. इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर ए और बी दो इवेंट्स हों इन अ सैम्पल स्पेस, कोई भी एक सैम्पल स्पेस का दो इवेंट्स आपको लेने हैं ए एंड बी, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी. Understood? So students, here you can see that A and B are two events where events E will be belongs to S. जो इवेंट होगा वो सैम्पल स्पेस में बिलोंग करना चाहिए और वो इवेंट ए में भी बिलोंग करे या फिर बी में बिलोंग करे या दोनों में बिलोंग करे. सो कलेक्टिवली दैट इवेंट ऑफ ए एंड इवेंट बी, ए और बी के दोनों इवेंट को कलेक्टिवली हम यूनियन ऑफ इवेंट बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल यूनियन ऑफ टू इवेंट्स. सपोज यू हैव अ सेट लाइक अ इवेंट्स ए हैविंग इट्स एलिमेंट्स 1 2 3 and another events B 3 4 5 6. So we want to find out A union B. A union B means collection of event of A and event of B which are common and which are not common. So ultimately we are getting 1 2 3 4 5 6. Okay students, let us see the next example. Let tosses were first toss, right? If you are tossing the two dice simultaneously and you are getting, suppose, the events like 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, and in the B the tosses that second toss is 5, means second toss जो होना चाहिए वो 5 आना चाहिए, means 1 5 आएगा, 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5. राइट स्टूडेंट्स, ना यूनियन ऑफ अ सेट. यूनियन ऑफ सेट मीन्स वो सारे एलिमेंट्स, सारे इवेंट्स आपको लेने हैं जो ए में हो और बी में हो प्लस जो कॉमन हो. राइट स्टूडेंट्स, सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये किसके इवेंट्स है? सारे सेट ए के. राइट, सिमिलरली 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5. सो कलेक्टिवली इवेंट्स ऑफ ए एंड इवेंट्स बी इज नोन एज यूनियन ऑफ टू इवेंट्स. ओके, let us see an example. Suppose A and B are two events associated with a random experiment, then the union of A and B represented by A union B. The probability of union of two event is given by probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Here P of A is the probability of event A, P of B is probability of event B, and P of A intersection B is probability of the intersection of event A and B. Students, here it is given that suppose A and B two events, suppose A और B दो events हो और वो एक दूसरे से associated हो, so what will be its union? So obviously A union B होगा. right? Similarly students, तो probability of two events क्या हो सकता है? So probability of two events by the addition formula P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B होगा. P of A जो है वो probability of event A है, P of B जो है वो probability of event B है, and P of A intersection B जो है वो probability of intersection of A and okay students, now moving to the next slide. This is example number 1. Consider the experiment of rolling a dice. एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है जो रोलिंग ऑफ डाइस में होना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन दैट इज मल्टीपल ऑफ 3.
और रोल करने के बाद आपको ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसका मल्टीपल ऑफ 3 हो, जो मल्टीपल ऑफ 3 हो। स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट द सैम्पल स्पेस क्या होगा। अगर कोई भी एक डाइस को आप रोल करते हो तो ऑब्वियसली सैम्पल स्पेस उसके क्या क्या हो सकते हैं, जो इवेंट होंगे सैम्पल स्पेस के 1 2 3 4 5 6 होगा। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एस, मतलब इसके टोटल जो ऑर्डर है इस सैम्पल स्पेस के कितने हैं, 6 है, राइट। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, और हमको क्या करना है, इवन नंबर फाइंड कर लेते हैं। सो व्हाट आर इवन नंबर, 2 4 6। इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो, दिस इज ऑर्डर ऑफ ए, राइट स्टूडेंट्स। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, जो पी ऑफ ए का, जो इवेंट ए का फेवरेबल इवेंट्स कितने ऑर्डर हैं उसके 3, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 6 है, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। अब आपको क्या करना है कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा ये सैम्पल स्पेस के, वो 3 और 6 होगा, बिकॉज 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ओके, सो इवेंट बी का जो ऑर्डर्स आएगा वो 2 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 2/6। सो अर्लियर वी हैव स्टडीड दैट द एडिशन फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इन ए। Students, here you can see that you will have to just write union over here. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Here students, in this formula there is a little bit correction. You will have to write over here P of A union B, right students? So P of A कितना है आपका, 3/6 है। P of B की क्या है, 2/6 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है जो दोनों में कॉमन है, सो स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन है, इवेंट ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है, उसके कितने हैं, 1 ही होगा, जो 3 है, राइट। सो इसको आप सिंपल एक कैलकुलेशंस करो, यू विल गेट 2/3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। In the next slide the question is Chris rolled a fair die and wished to find the probability of the number that turn up is odd are divisible by 5। तो क्रिस एक लड़का है जो एक डाई को थ्रो कर रहा है और उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो नंबर आना चाहिए ओड होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट अस कंसीडर द इवेंट कि दैट नंबर इज टर्न अप ओड और डिविजिबल बाई 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द सैम्पल स्पेस। सो सैम्पल स्पेस आपके क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो एज पर द इवेंट है जो ओड होना चाहिए, सो ओड नंबर्स क्या क्या आपके 1 3 और 5 होंगे, और सेकेंड जो है वो और डिविजिबल बाई 5। सो सेकेंड इवेंट बी है तो इट इज़ 5 ऑब्वियसली। लेट द नंबर्स दैट टर्न अप ओड और डिविजिबल बाई 5, बट हमको ऐसा इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो नंबर ओड भी हो और डिविजिबल बाई 5 हो। सो स्टूडेंट्स एज पर द इवेंट ए यूनियन बी आप करोगे, सो ए यूनियन बी के अंदर आप 1 2 3 ऑब्वियसली ए के अंदर भी है और बी के अंदर 5 है। सो अल्टीमेटली जो ऑर्डर आएगा सो वो 3 होगा, बिकॉज 1 2 3। So ultimately probability of this event will be 3/6. So you can simplify it, you will get what, 0.5. Okay students, now moving to the next slide, we are going to learn about this time intersection of two events. The intersection of two events A and B is a set of all sample point that are both A and B. So students हमको वो सारे sample points के event लेने हैं जो A के अंदर भी हो और B के अंदर भी हो। It means the intersection of two events suggests that you will have to take the common points. So आपके जो common points होंगे उसी को आप consider करोगे, that is known as the intersection of two events. Okay, so students here you can see that with example, suppose you have a set of point A 1 2 3 and set B 3 4 5 6. So what will be A intersection B? So students आप देख सकते हो कि A के अंदर और B के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप 3 कॉमन ले सकते हो। सिमिलरली लेट अस एग्जांपल सी ओवर हियर, इवन इंटीजर्स एंड D इज़ ओड इंटीजर्स। सो इवन इंटीजर्स में ऑब्वियसली आपके
कौन कौन से नंबर आएंगे 2, 4, 6, 8 ऑल दीज आर इवन इंटीजर्स एंड डी जो सेट है वो ओड है तो 1, 3, 5. सो स्टूडेंट्स 2, 4, 5 1, 2, 4, 6 एंड 1, 3, 5 ओड और इवन इंटीजर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है. सो ऑब्वियसली दैट विल बी एम्प्टी सेट्स. इट मीन्स इवेंट ए और बी में कोई भी इवेंट कॉमन नहीं है. Okay, let us see with example. Suppose a set A having points 3, 4, 6, 8. सेट A के जो एलिमेंट्स है वो 3, 4, 6, 8 है एंड B के जो एलिमेंट्स है वो 1, 2, 3, 5, 6 हैं. सो वी वांट टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, अदरवाइज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. सो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन मीन्स द पॉइंट शुड बी कॉमन इन ए बोथ द सेट्स, बोथ द इवेंट्स में कॉमन होना चाहिए. सो व्हाट आर कॉमन 3 एंड 6 दोनों में कॉमन है, राइट. सो स्टूडेंट्स नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज अ एग्जांपल. इन हॉस्टल ऑफ 175 स्टूडेंट्स, एक हॉस्टल में 175 स्टूडेंट्स हैं. 150 स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंज, जिसमें 150 स्टूडेंट्स को ऑरेंज जूस लाइक करते हैं एंड 100 स्टूडेंट्स लाइक एप्पल जूस, और उसमें से 100 स्टूडेंट्स एप्पल जूस लाइक करते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ, और उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑरेंज जूस भी लाइक करते हैं और एप्पल जूस भी लाइक करते हैं. हाउ मेनी लाइक ओनली एप्पल जूस, और उसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो जिसको बस एप्पल जूस ही पसंद है. सो स्टूडेंट्स लेट अस कंसिडर सेट द स्टूडेंट्स हु लाइक ऑरेंज जूस एंड बी जो है वो स्टूडेंट्स लाइक एप्पल जूस, राइट स्टूडेंट्स. So and A intersection B means represent the students who like orange juice and apple juice. जो A intersection B होगा वो apple juice और orange juice represent करेगा जो बच्चे like कर रहे हैं, right students. So we know the formula n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. So students in place of n you can write the P also. सो टोटल स्टूडेंट्स कितने, एन ऑफ ए यूनियन बी मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 175 हैं. एन ऑफ ए जो स्टूडेंट्स को ओनली ऑरेंज जूस लाइक करते हैं, एन ऑफ बी जो स्टूडेंट्स एप्पल जूस लाइक करते हैं. हमको फाइंड करना है जो स्टूडेंट्स दोनों लाइक करते हैं. सो अल्टीमेटली कैलकुलेशन करोगे आप, सो यू विल गेट व्हाट 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑरेंज और एप्पल जूस दोनों लाइक करेंगे. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर. इन अ क्लब ऑफ 20 मेंबर्स के क्लब हैं. 12 प्लेस टेबल टेनिस, जो जिसके अंदर 12 जो मेंबर्स हैं वो टेबल टेनिस लाइक करते हैं. 2 प्ले बोथ टेबल टेनिस एंड बिलियर्ड्स, 2 ऐसे हैं जो टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स पसंद करते हैं. हाउ मेनी मेंबर प्ले द बिलियर्ड्स, तो कितने मेंबर्स बिलियर्ड खेल रहे हैं. सो स्टूडेंट्स सपोज 2 इवेंट्स हैं यहाँ पे, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स. सो कंसीडर टेनिस के लिए जो होंगे वो इवेंट्स आएंगे. स्टूडेंट्स टेनिस प्लेयर 12 होंगे. एन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो टेबल टेनिस भी प्ले करता है और बिलियर्ड भी, वो 2 मेंबर्स हैं. सो वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो एन ऑफ ए यूनियन बी इट इज़ व्हाट 20 है. सो हियर इट मीन्स लिटिल बिट मिस्टेक, सो यू कैन राइट 20. एन ऑफ ए 12 है, एन ऑफ बी फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, यू विल गेट 10 मेंबर्स ऐसे होंगे जो बिलियर्ड्स पसंद करेंगे. सो स्टूडेंट्स जस्ट यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी एंड एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वेयर एन ऑफ ए यूनियन बी इज़ वॉट 20, राइट. एन ऑफ ए कितने हैं 12 है, एन ऑफ बी अननोन है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 है. सो कैलकुलेट करो, यू विल गेट 10, राइट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. सो व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. कंसिडर द इवेंट दैट अकर एट द सेम टाइम्स. ऐसे इवेंट्स होते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट जो सेम टाइम्स पे आते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इवेंट दैट कांट बी बोथ अकर एट द सेम टाइम, राइट. दोनों में सेम टाइम नहीं आएंगे. यू कांट बोथ पास अ टेस्ट एंड फेल द सेम टाइम. जैसे आप एग्ज़ाम्पल लो कि आप कोई एग्ज़ाम देते हो
और एक ही बार में आप पास भी हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं, या फिर आप पास हो गए या फिर आप फेल हो गए। यू कैन रोल अ डाई एंड गेट 4 एंड ओड नंबर एट द सेम टाइम। सपोज़ करो कि आप डाई रोल कर रहे हो, तो डाई रोल करते हुए आप 4 मिला, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 भी आ जाएगा, कोई, बिकॉज फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फेस अकर हुआ, कोई एक ही फेस आ सकता है, 6 के 6 फेसेस नहीं आ सकते। सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर डिसजॉइंट्स, और जो सेट होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के वो डिसजॉइंट होते हैं। सपोज़ करो एक इवेंट में आपने ABC लिया और दूसरे इवेंट में XYZ लिया, और दोनों में आप कॉमन करोगे तो आपको कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा। सो ऑब्वियसली दिस इज़ डिसजॉइंट इवेंट्स होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। Okay students, now moving to the next example of mutually exclusive event, two events that can't both occur at the same time, we have studied earlier. Suppose मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई डाइस को रोल करते हो तो एक फेस पे 6 आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 भी आ जाए, ऑब्वियसली या फिर 6 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। सो बाय थ्रोइंग अ डाइस यू कैन गेट ओनली 1 इवेंट, एक ही इवेंट आपको मिलने वाला, एक इवेंट से आप ज़्यादा इवेंट्स नहीं मिल सकता। ओके, इट इज़ वेरी लिटिल लेटर ओवर हियर, सो जस्ट सी एग्जाम्पल विथ प्लेइंग कार्ड्स। लेट्स लुक एट द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ड्रॉविंग अ रेड कार्ड आर ड्रॉविंग अ किंग, राइट स्टूडेंट्स। आप एक रेड कार्ड ड्रॉ करो या फिर अ किंग ड्रॉ करो। सो सेकेंड एग्जांपल है ड्रॉविंग अ रेड कार्ड और ड्रॉविंग अ क्लब। रेड कार्ड ड्रॉ करो या फिर एक क्लब ड्रॉ करो। ड्रॉविंग अ ब्लैक कार्ड और ड्रॉविंग अ स्पेड, एक ब्लैक कार्ड लो या फिर स्पेड लो। ड्रॉविंग अ ब्लैक कार्ड और ड्रॉविंग एन एस, एक कोई ब्लैक कार्ड हो या फिर कोई एस हो, राइट स्टूडेंट्स। सो अब इस सारे का हम एक बार जस्टिफिकेशन देखेंगे कि इसमें से कौन से करेक्ट हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द करेक्ट आंसर इज़ बी होगा, बिकॉज ड्रॉविंग अ रेड कार्ड एंड ड्रॉविंग अ क्लब कांट अकर एट द सेम टाइम, राइट स्टूडेंट्स। कि आप रेड कार्ड ड्रॉ कर रहे हो और क्लब भी आ जाए, सेम टाइम पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ऑल क्लब्स आर ब्लैक, क्योंकि सारे जो क्लब कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं। देयर फॉर आउटकम्स ड्रॉविंग अ रेड कार्ड एंड ड्रॉविंग अ क्लब आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है, बिकॉज रेड कार्ड ऑलवेज हार्ट और डायमंड होता है और क्लब कार्ड क्या होता है, ब्लैक होता है। सो बी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं होती है। अदर सिनेरियोज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड कैन अकर टुगेदर, राइट। अ कार्ड कैन बी बोथ रेड एंड अ किंग, किंग ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ डायमंड। दूसरा जो है वो ए नहीं होगा, बिकॉज आप कार्ड अगर ड्रॉ कर रहे हो और वो रेड कलर का है तो रेड कलर के 2 कार्ड होते हैं तो उसमें कॉमन हो सकता है। सी आंसर क्यों नहीं होगा, बिकॉज कार्ड कैन बी बोथ ब्लैक एंड स्पेड, कार्ड ब्लैक हो और स्पेड भी हो सकता है, बिकॉज क्लब और स्पेड कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अ कार्ड कैन बी बोथ ब्लैक एंड एस, कार्ड क्या हो सकता है, बोथ ब्लैक भी हो सकता है एस भी हो सकता है, बिकॉज ब्लैक कार्ड में एस 2 एस जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। कौन कौन से ब्लैक होते हैं, स्पेड ऑफ एस, एस ऑफ स्पेड और एस ऑफ ब्लैक। सो द करेक्ट जस्टिफिकेशन इज बी, बी जो है वो इवेंट वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स विथ अ स्टैंडर्ड 6 साइड्स डाई, राइट। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड डाई ले लो जिसमें 6 साइड्स हों। नाउ दैट हैव टू फ्रेमवर्क विथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेट अस ट्राई टू फ्यू मोर एग्जांपल। दिस टाइम विथ स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाई। लेट अस इमेजिन वी आर रोलिंग दिस डाई। आप अगर ये डाइस को रोल करते हो एक बार, कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। रोलिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 2 और रोलिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 3, ऐसा कोई पॉसिबल नंबर है जो
रोल करने के बाद वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से। सो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो 2 से भी हो 3 से भी? ऑब्वियसली वो 6 होगा। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। रोलिंग a number divisible by 2 or rolling a number that is multiple of 5, राइट। वो नंबर 2 का डिविजिबल हो और 5 का मल्टीपल हो। देखो 2 का डिविजिबल ऑब्वियसली 4 और 6 हो सकता है, राइट, और 5 का मल्टीपल हो सकता है क्या? वो ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर, रोलिंग अ प्राइम नंबर और रोलिंग एन इवन नंबर, राइट। आप रोल करने पे प्राइम नंबर आए या फिर इवन नंबर आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है? वो 2 है, राइट। सो एक कॉमन हो गया, ये भी नहीं होगा। रोलिंग एन नॉन प्राइम नंबर्स आर रोलिंग एन ओड नंबर। सो नॉन प्राइम नंबर्स कौन कौन से? 1, 4 एंड 6, ये नॉन प्राइम नंबर है। आर रोलिंग एन ओड नंबर, और रोल करने पे क्या आना चाहिए? ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से? 1, 3 और 5 है, राइट। सो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यू कुड रोल 6 विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। सो फर्स्ट जो होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा, बिकॉज 6 जो है वो 2 और 3 से भी डिविजिबल है, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सा हो सकता है? यू कैन रोल 2, 4, 6 एट द सेम टाइम एज यू रोल 5। सो दिस इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअली, थर्ड नंबर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा बिकॉज यू कुड रोल 2 विच इज़ एन इवन प्राइम नंबर, जो इवन है तो कॉमन आ गया, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सीधे देखना है कि जो इवेंट्स हम कर रहे हैं, जो इवेंट्स हमको फाइंड आउट हो रहा है, वो दोनों इवेंट्स में कोई भी चीज़ अगर कॉमन नहीं आती है तो दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दोनों में से कोई भी एक पॉइंट है वो कॉमन आ रहा है तो दोज इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द एग्जांपल। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाई शोविंग 2 और 5? आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाई को थ्रो करने पर 2 या 5 आए। सपोज 2 आए, सो 2 ऑब्वियसली 1 टाइम ही आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज़ व्हाट? 1/6। 5 आएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एक ही बार आएगा, सो 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, वी वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 5, 2 और 5 दोनों की प्रोबेबिलिटी। सो टेकिंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। सो 1/6, 1/6, 6 is common, so 1 + 1, 2, 2/6. So simplifying, 2 is cancelled by 2 and 6 is cancelled by 2, so we are getting 1/3. So probability of a die solving 2 or 5 is 1/6. Okay students, now the next topic is practice problem. You will have to do by yourself. The first question is, a die is cast 1, एक die को आप एक बार फेंक रहे हो. What is the probability of getting either 6 or 3? अर्लियर हमने इस टाइप के सम्स किए हैं कि what is the probability of getting 6 और 3. 6 और 3 फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर 1/3 है. यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम इन योर नोटबुक्स. Similarly, the second question is 3 faces of die are painted with a white. कोई भी डाई का 6 फेसेस होते हैं. आपको 3 फेसेस को क्या करना है? वाइट पेन से पेंटिंग करना है. इस तरह से पेंट करो कि जो ओड फेसेस हैं वो विजिबल हो, राइट. द डाई इज कास्ट, उसके बाद डाई को थ्रो करो. सो 1, 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो ऑब्वियसली 1 आने की, बिकॉज आपने ऑलरेडी 3 फेसेस को पेंट कर दिया है तो आपके पास कितने फेसेस रह गए? 3. सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा. 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा. 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा. सो ऐड कर लो और कैलकुलेट कर लो. सो आंसर विल बी 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज exhaustive events. If all the outcomes of an experiment are considered, it means स्टूडेंट्स कोई भी 2 इवेंट्स हों और इवेंट ए के भी एक्सपेरिमेंट आप कंसीडर कर रहे हो, इवेंट बी के भी सारे एक्सपेरिमेंट कलेक्टिवली कंसीडर कर रहे हो, दोज टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर नोन एज exhaustive events. The exhaustive events are nothing but all the sample points in a सैम्पल पॉइंट्स या सैम्पल स्पेस. जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि
कोई भी टू इवेंट्स हो, ए और बी हो, और उसके सारे आप पॉइंट्स कलेक्टिवली लोगे, सो यू फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द सैम्पल स्पेस। आपको क्या फाइंड होने वाला है? सैम्पल स्पेस। अगर आप डाई को थ्रो कर रहे हो, सो 1 2 3 4 5 6 आएगा। सो कलेक्टिवली अगर आप इसको दो पार्ट में कर दो, सपोज यू आर गेटिंग 1 2 3 इवेंट ए हो गया और 4 5 6 ए इवेंट बी हो गया। सो कलेक्टिवली अगर इसको आप राइट करोगे, यू आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6। सो दिस इवेंट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट एग्जॉस्टिव इवेंट। अ सैम्पल स्पेस इज गिवन। एक सैम्पल स्पेस है आपके पास, सपोज द ऑल द पॉइंट्स ऑफ दैट सैम्पल स्पेस इज 1 to 10 है। टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर, सो इसमें आपको एग्जांपल दिए हैं कि कौन सा एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। लेट अस इवेंट ए क्या है? 1 2 3 है, और वाई एक्स के अंदर 1 2 3 है, वाई के अंदर 4 5 6 है, और जेड के जो एलिमेंट्स है वो 7 8 9 10 है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन अगर जेड करोगे, सो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो तीनों में कॉमन है? तो ऑब्वियसली कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन है एक्स वाई और जेड में, बिकॉज 1 से 3 तक एक्स में आ गया, 4 से 6 वाई में आ गया, जेड में 7 से 10 आ गया। मीन्स कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, राइट स्टूडेंट्स। बट अगर आप एक्स वाई और जेड का यूनियन लेते हो, मीन्स सबको साथ में कलेक्टिवली एलिमेंट्स राइट करते हो, सो यू आर गेटिंग व्हाट? अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 1 से लेके 10 तक है, तो आपको फाइनली वापस क्या मिल जा रहा है? सैम्पल स्पेस मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, here it has been clear that x y z are exhaustive events because they form a complete sample space। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं। वो इवेंट्स जिसका कलेक्शन लेने पर हमको सैम्पल स्पेस मिल जाता है, दोज इवेंट्स आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू एग्जांपल नंबर 2। अ कॉइन इज टोस्ट। एक कॉइन को आपको टोस्ट करना है। टेल वेदर द इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर नॉट। आपको बताना है कि जो इवेंट्स बनेंगे वो एग्जॉस्टिव हैं या नहीं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो उसके जो सैम्पल स्पेस होगा हेड और टेल होगा। सपोज इवेंट ए में आप हेड फाइंड आउट कर सकते हो, और इवेंट वाई में यू आर गेटिंग टेल। सो इन इवेंट एक्स यू आर गेटिंग हेड, एंड इन इवेंट्स वाई यू आर गेटिंग टेल। सो आप एक्स और वाई का कलेक्शन लो, सो व्हाट यू आर गेटिंग? head and tail. So you can say that event together you are getting the sample space. So these events are exhaustive events. Okay students, the next is elementary events. An event having only one outcomes. ऐसा इवेंट जिसका एक ही आउटकम्स हो एक्सपेरिमेंट के अंदर इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मीन्स स्टूडेंट्स, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक ही आउटकम्स आए, दैट इवेंट इज़ नोन एज एलिमेंट्री इवेंट्स। सो गेटिंग अ हेड ये एलिमेंट्री इवेंट है, गेटिंग अ टेल ये एलिमेंट्री इवेंट्स है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, राइट, सो 1 एलिमेंट्री इवेंट है, 2 वो एलिमेंट्री इवेंट्स है। सिमिलरली अप टू 6 इंडिविजुअली जो उसके इवेंट्स होंगे वो एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, राइट। Okay students, now the next example, randomly taking a card from a deck is an elementary event। अगर आपके पास 52 कार्ड्स हैं, पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, अगर आप उसमें से कोई भी एक कार्ड रिसीव कर रहे हो, पिकअप कर रहे हो, सपोज़ आपने एक कार्ड पिकअप किया, यू आर गेटिंग किंग, राइट। सो वो कार्ड क्या होगा? आपका एलिमेंट्री इवेंट होगा। यू आर गेटिंग एस, दैट कार्ड इज़ एलिमेंट्री इवेंट। यू आर गेटिंग क्लब कार्ड, दैट इज़ एलिमेंट्री इवेंट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो, सो व्हाट विल बी सैम्पल स्पेस बाय थ्रोइंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। सो एक हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। सो अगर ये सारे इवेंट को आप इंडिविजुअली लोगे, दीज इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट्स। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। An elementary events also called an atomic event are sample point।
एलिमेंट्री इवेंट को हम एटॉमिक इवेंट भी बोलते हैं या फिर सैम्पल पॉइंट भी बोलते हैं। इज़ एन इवेंट विच कंटेन ओनली वन सिंगल आउटकम्स, जो सिंगल आउटकम्स होता है इन अ सैम्पल स्पेस में। यूजिंग द सेट थियरी ऑफ टर्मिनोलॉजी, अगर सेट थियरी के टर्मिनोलॉजी की बात करो, एन एलिमेंट्री इवेंट इज सिंगलटन सेट। जो एलिमेंट्री इवेंट होता है वो सिंगलटन सेट होता है, मतलब एक ही इवेंट आएगा। एलिमेंट्री इवेंट एंड दियर corresponding outcomes are often written interchangeably by simplicity, such as event correspond to precisely one outcomes, जिसका एक ही outcomes हो। suppose set k where k belongs to n, so n के अंदर आपके कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 से लेके आप जहाँ तक काउंट कर सकते हो, राइट। सो सैम्पल स्पेस 0 1 2 3 द नेचुरल नंबर आपको राइट करना है, 0 नहीं आएगा। एंड सेट एक्स वेयर एक्स इज रियल नंबर, सो रियल नंबर क्या होते हैं, इन्फानाइट तक होते हैं, पॉजिटिव इन्फानाइट एंड निगेटिव इन्फानाइट, दैट इज़ नोन एज रियल नंबर, राइट। जो पॉजिटिव इन्फानाइट और निगेटिव इन्फानाइट नंबर्स के बीच में जो नंबर आते हैं, दोज नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। ये भी क्या है ये आपका, that is the example of elementary event. Okay students, here we are completing today's video lesson. I hope you have understood this video lesson. Students, आज का video lesson थोड़ा सा difficult था, but by doing too much practice we can get the command over this topic. Okay, thank you so much for watching this video lesson.